Hello students, once again welcome back. In this video we will just solve the true and false, discuss about the sentences, which one is true and which one is false, okay? And I hope that you all will answer me that which will true and which will false, and everybody will write true and false in your copies. Nobody will trick only on the books, okay? You can trick with the help of the pencil, but you will write true and false with the complete sentence on your copies, okay? So let us see. I hope that सबके सामने बुक्स होंगी. अंडरस्टैंडिंग दिस स्टोरी के बाद है टिक, और टिक ए है टिक टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड ए फॉर false ones, okay? You can read the complete sentence from your book. Here I have written only some few words and explained which is true or false. Swami did not, but I am going to read the complete sentence, okay? You will also check your book. Swami did not want to go to school because he had a headache. स्वामी स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे सर दर्द था. इज इट करेक्ट, या फिर वो बहाना बना रहा था? बहाना बना रहा था, ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम फॉल्स करते हैं. अगर आप लोगों को लगता है इफ़ यू आर सीमिंग दैट ही वॉज नॉट मेकिंग द प्रिटेंशंस, रियली ही हैड अ हेडेक, तो आप लोग ट्रू कर सकते हो, ठीक है? बट आई थिंक दैट ही वॉज प्रिटेंडिंग ऑफ हेडेक, so it is a false. Second, Swami's school began at 9 am. सही है? Yes, it is true. कैसे? उस टेक्स्ट में एक लाइन आई है ना कि स्वामी वॉज ऑलरेडी 1.5 hour लेट, मतलब 1.5 घंटे लेट था, और वो स्कूल में पहुंचा था 10:30 बजे. तो इसका मतलब स्कूल टाइमिंग जो थी वो 9 am थी. सो दिस वन इज अ ट्रू. स्वामी टॉट, सॉरी यहाँ पर मैंने स्वामी लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. और होगा ये क्या? सैमुअल, ओके? सैमुअल टॉट अर्थमेटिक एंड हिस्ट्री टू स्वामी एंड हिज क्लास फेलोज. सो स्वामी टॉट अर्थमेटिक एंड हिस्ट्री, ये भी ट्रू है. अर्थमेटिक और हिस्ट्री पढ़ाता था. फर्स्ट पीरियड वॉज अबाउट अर्थमेटिक एंड लास्ट पीरियड वॉज अबाउट हिस्ट्री, सो इट इज़ ट्रू. फोर्थ, Swami decided to fling the complaint letter written by his father into a gutter. ये भी ट्रू है. रास्ते में वो सोच रहा था, he was thinking to fling it into a gutter because a lot of allegations were written inside the letter which he had to hand over his headmaster, okay? Next means fifth number. Swami was overjoyed at getting the complaint letter against Samuel. स्वामी जो है बहुत ही ज़्यादा खुश था कंप्लेंट लेटर पा करके. नो, ही वॉज एक्चुअली नॉट हैप्पी. ही वॉज completely confused after getting the complaint letter against Samuel. So this is false. Sixth, Swami reached the school an hour late. This is also false. Swami 1 घंटे लेट नहीं बल्कि 1.5 घंटे लेट पहुंचा था स्कूल. Seventh, Samuel had 2 arithmetic periods with Swami's class on Monday. मंडे के दिन स्वामी के क्लास में सैमुअल के 2 अर्थमेटिक के क्लास थे. नो, बट फर्स्ट पीरियड वॉज अबाउट अर्थमेटिक एंड लास्ट पीरियड जो था वो हिस्ट्री का था. तो अर्थमेटिक के दोनों पीरियड्स नहीं थे मंडे को. एक अर्थमेटिक और एक हिस्ट्री, 2 पीरियड्स तो थे बट डिफरेंट्स थे. वॉज नॉट बोथ पीरियड्स ऑफ अर्थमेटिक. नेक्स्ट, सैमुअल मीन्स 8 नंबर. सैमुअल गेव, आप लोग देख रहे हो ना बुक में, आई होप दैट यू ऑल आर वॉचिंग इन द बुक. सैमुअल गेव स्वामी 8 कट्स ऑफ केन. सैमुअल ने स्वामी को 8 कट्स, केन के 8 कट्स लगाए. ट्रू है या फॉल्स है? मैंने यहाँ पर लिखा है फॉल्स, ये ट्रू होगा. सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है. यू कैन राइट, नोट डाउन दैट दिस वन इज द true. TRUE. 8th number is true while I have printed false, okay? So this one is the true, okay? Next one,
Swami delivered the complaint letter to the headmaster after the last bell rang. True or false? False. Because headmaster was only one that day for the 1 week. So he did not hand over that complaint letter to his headmaster. So this is a false. Okay, students. Now let us move on the question and answer B part. Answer the following questions in about 30 words each. Means your answer should be at least of 30 words. It may be more than 30 words but not less than the 30 words. Somewhere if you don't have the many points about the questions, so therefore you can just write between 20 to 25 words. Okay, so first let us read the question number first and discuss the answer. How did Swami's father react when Swami told him that he was not going to school? How different was his reaction from that of Swami's mother? मतलब जब स्वामी ने कैसा रिएक्ट किया, उसके स्वामी फादर ने कैसा रिएक्ट किया जब उसको पता चला कि स्वामी स्कूल नहीं गया है, और उनका जो रिएक्शन था उसके मदर से कैसे एकदम से अलग था. हाउ इट वॉज द डिफरेंट फ्रॉम स्वामीज मदर रिएक्शन. ओके, मतलब स्वामी की मदर का रिएक्शन दूसरा होता था उसके स्कूल नहीं जाने के बहाने को सुन करके, और उसके फादर का रिएक्शन दूसरा था. कैसे था? सो यू हैव टू राइट द आंसर. व्हेन स्वामीज फादर केम इनसाइड द रूम ही saw दैट स्वामी was lying on his mother's bench. Swami was lying on his mother's bench. At the same time, he formally and strictly asked him to go to school. Swami excuses did not work in his favor, even if he was late. On the other hand, when Swami did not like going to school, his excuses before his mother used work, and he was lovingly told that he could stay at home. Now students, let me explain the answer. जब स्वामी के फादर ने देखा कि अभी भी वो सो रहा है, अपने मदर की बेंच पर अभी भी वो सो रहा है और स्कूल नहीं गया है, तब फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली होकर के स्कूल जाने को कहा. लेकिन स्वामी ने बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लेट था, फिर भी उसके एक्सक्यूज़ काम नहीं किए उसके फेवर में, ठीक है. जबकि उसके जो इवन इफ ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जब स्वामी डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, और जब वो स्वामी स्कूल जाना नहीं चाहता था तो उसके जो मदर के सामने थे उसके एक्सक्यूज़ बहुत ही अच्छे से काम करते थे और उसको प्यार से उसकी माँ कहते थे ठीक है तुम घर रुक सकते हो, जबकि उसके फादर उसको ऐसा नहीं करने दिए, ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Father's behavior took an unexpected turn. What was unexpected about Swami's father's behavior? मतलब फादर के जो बिहेवियर था वो एक तरह से अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया. मतलब जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं, पूरी तरह से वो उसके सोच के दूसरी तरफ हो गया काम. What उसका एक्सपेक्टेशन क्या था, ठीक है ना. सो योर आंसर इज एट फर्स्ट स्वामी expected that after hearing the description about Samuel's violent behavior, his father let him make free and would ask him to stay at home. मतलब जब स्वामी ने सैमुअल के बिहेवियर के बारे में, बहुत वायलेंट बिहेवियर के बारे में बताया, तो स्वामी ने ऐसा सोचा था कि उसके फादर उसको छोड़ देंगे, स्कूल नहीं जाने के लिए कहेंगे. द अनएक्सपेक्टेड टर्न केम टू स्वामी. और जब अनएक्सपेक्टेड टर्न जो बिना उसका सोचा हुआ था वो नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ कि स्वामी व्हेन हिज फादर स्टार्टेड राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर, जब उसके फादर ने, मतलब अनएक्सपेक्टेड टर्न ये था कि स्वामी के फादर ने हेडमास्टर को सैमुअल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखा जिसमें उसके वायलेंटिव नेचर के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था और उन्होंने उसके डिसमिसल के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. हम लोग जल्दी क्वेश्चन नंबर जो भी हैं थर्ड फोर्थ तक एक्सप्लेन करेंगे एंड फिनिश भी करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. व्हाई डिड नॉट स्वामी हैंड ओवर द कंप्लेंट लेटर टू द हेडमास्टर इन द मॉर्निंग. सुबह में ही उसने कंप्लेंट लेटर को हेडमास्टर को क्यों नहीं दिया. स्वामी वॉज थिंकिंग इन द वे अबाउट द लेटर. तो इसका आंसर ये होगा बेटा
कि स्वामी वॉज थिंकिंग इन द वे अबाउट द लेटर एंड मेड अप हिज माइंड टू नॉट हैंड ओवर दिस लेटर टू हिज हेडमास्टर एंड वांटेड टू फ्लिंग इट इनटू द गटर। मतलब रास्ते में वो सोच रहा था कि बहुत सारे उसने एलिगेशंस लगाए हुए हैं और वो सबसे पहले तो उसको फेंक देना चाहता था गट्टर में, क्योंकि उसको जो है पूरी तरह से डाउट था उसको कि नहीं क्या सैमुअल ऐसा है भी या नहीं भी। सो ही डिड नॉट गिव हिम द लेटर, हैंड ओवर द लेटर। स्वामी कुड नॉट डिलीवर द लेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आई होप दैट आप सभी लोगों को क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्वेश्चंस आप अपने बुक से लिखोगे, आंसर यहाँ से स्क्रीन से लिखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड योर क्वेश्चन, कुड स्वामी डिलीवर द कंप्लेंट लेटर टू द हेडमास्टर आफ्टर द स्कूल, वाई नॉट। मतलब कंप्लेंट लेटर जो था स्कूल के बाद स्वामी ने हेडमास्टर को दे दिया, क्यों नहीं। एक्चुअली स्टूडेंट्स हैव रिटन इन अ वेरी स्मॉल सेंटेंस, कंप्लीट आंसर शायद नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत है जो आपके कंसिडरेशन के लिए मैंने छोड़ा है, ठीक है ना। आई हैव लेफ्ट सम आंसर फॉर योर कंसिडरेशन। तो मेरा आंसर यहाँ पर ये होगा, नो, स्वामी कुड नॉट डिलीवर दैट लेटर आफ्टर द स्कूल बिकॉज हिज हेड मास्टर वॉज ऑन द लीव दैट डे। उसके हेडमास्टर उस दिन छुट्टी पर थे, इसलिए वो, ये तो वाई वाला तो आंसर हो गया, और वाई नॉट वाला आंसर यू विल कंसिडर बाय योर सेल्फ एंड यू विल राइट इट सेल्फ। So before finishing this chapter, I would like to say you all thanks for patience hearing and watching this video. But one more request from you all, my dear students, please like this channel. Sorry, please like this video and subscribe this channel. And comment also if there is some questions and doubt about the questions, about the descriptions, about the explanations, about the hard words, about anything, so please comment. Okay, thank you very much, and I hope that you all will note down your questions and answer with the help of this video.